کو برکت دے۔ تو مسیح میں میرے عزیز بہن بھائیوں، اب وقت آن پہنچا ہے کہ ہم خداوند کی آواز کو سنیں۔ تو میری آپ سبوں سے گزارش ہے کہ دوران کلام اپنے مائک کو مت اوپن کریں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی آواز سے ضروری اور کوئی آواز نہیں۔ تو آپ ضرور خدا کے کلام کو سنیں۔ تو میں آپ سبوں کی موجودگی میں خدا کے بیٹے بھائی جاوید کو ویلکم کہتا ہوں۔ جی ویلکم بھائی جاوید، آپ آئیں اور خداوند کی کلام کی خدمت کو سر انجام دیں۔ جے مسیح جی، پریز دی لارڈ۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے جی۔ بڑی خوبصورت پرستش ہو رہی سی، سونو بھائی نے بڑا زبردست گیت گایا، سسٹر نے بھی۔ خداوند آپ کو برکت دے جی۔ اج اسی 7واں چیپٹر شروع کرنا ہے۔ گل آلریڈی شروع ہو چکی ہے جیڑی اسی 7ویں چیپٹر چ گل کرنی ہے۔ پولس رسول نے گل آلریڈی شروع کر چھڑی سی۔ بڑے سوال سن کرنتھیوں دی کلیسیا دے شادی شدہ زندگی دے بارے چ، تے پولس رسول ایتھے انہاں نوں ایڈریس کرن دیا، لیکن ایتھے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں تانوں حکم دے رہا، کہندا میں تانوں صرف اپنی رائے دے رہا کہ خداوند دا کلام جویں کہندا تسی اس طرح چلو۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 7 باب۔ جو باتیں تم نے لکھی تھی ان کی بابت یہ ہے، پولس رسول نو کسے نے خط لکھیا سی۔ شروع تو اسی پڑھیا سی خلوے کے خاندان، خلوے کے خاندان والوں نے مجھے خط لکھا۔ کہہ لو کہ کسے نے پولس رسول نو خط لکھیا سی، یہ انہاں دا جواب دے رہے۔ مرد کے لیے اچھا ہے کہ عورت کو نہ چھوئے، لیکن حرام کاری کے اندیشہ سے ہر مرد اپنی بیوی اور ہر عورت اپنا شوہر رکھے۔ شوہر بیوی کا حق ادا کرے اور وہی بیوی شوہر کا۔ بیوی اپنے بدن کی مختار نہیں بلکہ شوہر ہے، اسی طرح شوہر بھی اپنے بدن کا مختار نہیں بلکہ بیوی ہے۔ تم ایک دوسرے سے جدا نہ رہو مگر تھوڑی مدت تک آپس کی رضامندی سے، تاکہ دعا کے واسطے فرصت ملے اور پھر اکٹھے ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ غلبہ نفس کے سبب سے شیطان تم کو آزمائے، لیکن یہ میں اجازت کے طور پر کہتا ہوں، حکم کے طور پر نہیں۔ اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جیسا میں ہوں ویسے ہی سب ہوں، لیکن ہر ایک کو خدا کی طرف سے خاص توفیق ملی ہے، کسی کو کسی طرح کی اور کسی کو کسی طرح کی۔ پریز دی لارڈ۔ اسی اگے پڑھتے جاواں گے، ٹھیک ہے؟ جدوں اگے جاواں گے اتوں تک سانوں یہ سمجھ لگ رہی، کچھ لوگوں نے سوال کیتے سی، کرنتھیوں دی کلیسیا نے پولس رسول نو خط لکھیا سی کہ شادی شدہ زندگی دے بارے چ مسیحی زندگی کیویں سانوں گزارنی چاہیے، کہ کچھ لوکی جڑے نے شادی کر کے پھر بھی حرام کاری کر رہے سی، ٹھیک ہے؟ تو کچھ شادی تو پہلا کرن ڈے سی، وہ سمجھتے سی کوئی مسئلہ نہیں جی، جیویں کہندے پیٹ جڑا کھانے واسطے بنیا کھانا پیٹ لئی، وہ کہندے سی جسم جڑا حرام کاری واسطے بنیا تے حرام کاری جسم لئی۔ وہ الٹی ہی انہاں کہہ لو انٹرپریٹیشن کیتی سی۔ لیکن پولس رسول نے کیا کیا سی کہ بدن حرام کاری کے لیے نہیں بلکہ خداوند کے لیے ہے، اور خداوند بدن کے لیے۔ جدو اسی آخری چیپٹر ختم کیتا سی، وہ 7ویں چیپٹر تو جڑی پچھلی آیت ہے میں پڑھاں گا تھوڑے لیے۔ کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرنا ہے۔ بدن جڑا ہے پیچھے سے پڑھا سی کہ مقدس ہے جی، خداوند دا روح وچ سکونت کردا۔ اسی تھیم نو پولس رسول شادی شدہ رشتے چ لے کے جا رہے ہیں۔ اتنے گل ہونی ہے شادی شدہ زندگی دی، ٹھیک ہے؟ سنگل، شادی شدہ، پھر آلو طلاق دے بارے چ گل کردا ہے، تو پھر دوبارہ شادی دے بارے چ گل کردا ہے۔ یہ 4 چیزاں ڈسکس کردا۔ ہن پہلا کہہ رہا ہے سب تو پہلا کہ مرد کے لیے اچھا ہے کہ عورت کو نہ چھوئے۔
ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੂਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ? ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਲਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੋਵੋ, ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਿੱਧੀ ਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਹਜੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਪੌਲ ਕਹ ਰਿਹਾ ਮਰਦ ਕੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ को ना छुए। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। लेकिन हराम कारी के अंदेशा से हर मर्द अपनी बीवी और हर औरत अपना शोहर रखे। आंदा अगर थोड़े को कंट्रोल नहीं हुंदा तो ठीक है, ब्याह कर लो जी। खुदावन ने एक रूट बनाया, एक सिस्टम बनाया कि तुसी सिर्फ जिस्मानी तलक अपनी वाइफ नाल रख सकते हो या वाइफ अपने हसबैंड नाल। फिर ये भी लिखा है कि शोहर बीवी का हक अदा करे और वो वैसा ही बीवी शोहर का। हुण हक की है कि बीवी अपने बदन की मुख्तार नहीं बल्कि शोहर है, इसी तरह शोहर भी अपने बदन का मुख्तार नहीं बल्कि बीवी है। पिछे से पढ़िया सी कि दो बदन एक तन। जो शादी हो जाती है, मियां बीवी का तलक ही हुंदा है, एक जिसम बन जाते हैं दोवें। ते कहंदे ਇਹ ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਡਰਾਈਵ ਸਾਡੇ ਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਗਾਡ ਗਿਫਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚ ਪਾਈਏ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਖਾਹਿਸ਼, ਲੜਕੀਆਂ ਚ ਵੀ ਲੜਕਿਆਂ ਚ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਚ ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਫਟ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੰਮ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਲੀਗਲ ਵੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਚ ਇੱਕ ਜਾਨ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। बीवी बंदे का हक अदा करे, बंदा बीवी का हक अदा करे, लेकिन एक ही कंडीशन है। उन्हें कहा सी तुसी अलग होना है, तुम एक दूसरे से जुदा ना हो। आंदे तुसी एक दूसरे तो दूर नहीं होना, लेकिन एक कंडीशन है वे कि तुसी थोड़ी देर वास्ते आपसी रजामंदी दे नाल दुआ वास्ते एक दूसरे को अलग हो जाओ, आपस की रजामंदी, ताकि दुआ के वास्ते फुर्सत मिले, फिर इकट्ठे हो जाओ। आंदा फिर दोबारा इकट्ठे हो जाओ। ऐसा ना हो कि गलबा नफ्स के सबब से शैतान तुमको आजमाए। पौलुस रसूल कहता कि एक जिहड़ी सैक्स ड्राइव तुहाडे च पाई जाती है, कहता जवानी च कह लो बड़ा एक किस्म का जोश आंदा है, तो कहता इस वास्ते ज्यादा देर वास्ते तुसीं अलग नहीं रहना ताकि शैतान ना हमला करे। वजह की सी? कलीसिया च की हो रहा सी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੇਵੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐਫਰੋਡਾਈਟ, ਉਹਦਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 1000 ਪ੍ਰੀਸਟ ਸਨ, ਫੀਮੇਲ ਪ੍ਰੀਸਟ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਖਾਦਮਾ। ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦਮਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਨਾ। 1000 ਖਾਦਮਾਂ ਸੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰੰਥੀਓ ਚ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਥੀਓ ਇੱਕ ਤਜਾਰਤਗਾਹ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇੰਜ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਹ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਗਲਬਾ ਨਾ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟਰਬ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੁਨੀਆ ਚ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ,
ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਖੁਦ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਹਿਦ ਵੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟਵਿਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਲੜਕਾ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੀ, ਜੇ ਲੜਕੀ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੀ। ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੜਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਐਡਵਾਈਸ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਣਾ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਜੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਰ ਲਈਦੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਆ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਦੁਆ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਰਸ ਦੇ ਖੱਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਨਿਮਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ ਜੀ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਖੱਤ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 3:7 ਆਇਤ ਜੀ। ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? इसी तरह तुम शोहरों को अपनी बीवियों के साथ समझदारी से रहना चाहिए। तुम उनकी इज्जत करो, वो तुमसे ज्यादा कमजोर हैं, लेकिन अपने फजल से दोनों को वारिस बनाया है। खुदा ने अपने फजल से दोनों को वारिस बना दिया है ताकि तुम्हारी दुआओं से ये चीजें रुक ना जाएं। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗਾ, ਬੀਵੀ ਵੱਖਰੀ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਵਾਇਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 4:12 'ਚ ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਸਾ ਨਾ ਰੱਸਾ ਅਗਰ 2 ਡੋਰੀਆਂ ਨਾ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੀਸਰੀ ਡੋਰੀ ਐਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਡੋਰੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਂਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਕਸਰ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਆਂਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੋਰ। ਲੇਕਿਨ ਪੌਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, मैं सिर्फ अपनी राय दे रहा, लेकिन मैं ये इजाजत के तौर पर कहता हूँ, हुक्म के तौर पर नहीं। मैं तो ये चाहता हूं कि जैसा मैं हूं तुम वैसे ही सब आदमी हो। ਪੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵਾਂ। ਪੌਲ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨਹੈਡਰਨ ਚ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ, लेकिन किसी को कोई नहीं है रिकॉर्ड। लेकिन हर एक को खुदा की तरफ से खास तौफीक मिली है।
ਆਂਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੌਫੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਉਸ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਥਰੂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, किसी को किसी तरह की और किसी को किसी तरह की। वो गिफ्ट है कि ये जी, बस मैं बेब्याहों और बेवाओं के हक में ये कहता हूं कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूं। इट्स ए गॉड गिफ्ट। अगर खुदावन ने तुहानू सिंगल रखा है, सिंगल रख के खुदावन तुहाडे कोल काम लै रहा है, तो ये भी खुदावन दा एक तोहफा है जी। इट्स ए गिफ्ट ऑफ गॉड। कहंदा मैनू खुदावन दा ये गिफ्ट मिलिया सी। आंदा अगर तुसी शादी करके खुदावन दी खिदमत करना चाहते हो, ये भी एक गिफ्ट है जी। देयर इज नो प्रॉब्लम। इट्स ए गिफ्ट ऑफ गॉड। खुदावन ने तुहानू गिफ्ट कीता है कि तुसी सिर्फ मेरी खिदमत करनी सिंगल रह के। इट्स गुड। आंदा अगर तुसी इंज कर सकते हो, इट्स गुड, क्योंकि खुदावन ने इस तरह ही आख्या जी। कहता मैनू तो यह वाला गिफ्ट मिले, थानू केड़ा मिले मैनू नहीं पता, क्योंकि कह रहे कि किसी को किसी की और किसी को किसी तरह की, सारे वक्री वक्री तौफीक मिली। बस मैं बेब्याहों और बेवाओं के हक में ये कहता हूं कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूं। हुण आंदा अगर कोई किसी का विआह नहीं होया या कोई बेवा हो गया या हो गई है, तो बिल्कुल उस तरह ही रहो जी, तुसी मेरे वांगू रहो। फिर कहंदा अगर विआह नहीं होया तो मेरे वर्गे रहो, अगर तुसी बेवा है कोई या रंडवा है, कहंदा भी मेरे वांगू रहे। लेकिन अगर जब्त ना कर सके, आंदा अगर थोड़े को जब्त नहीं हुंदा, देयर इज अ टेम्पटेशन। अगर जब्त ना कर सके तो ब्याह कर ले, क्योंकि ब्याह करना मस्त होने से बेहतर है। कहंदा फिर ब्याह कर लो अगर थोड़े को काबू नहीं हुंदा। लेकिन कहता मैनू तो खुदावन ने गिफ्ट दिता है जी। मगर जिनका ब्याह हो गया है उनको मैं नहीं बल्कि खुदावंद हुक्म देता है कि बीवी अपने शोहर से जुदा ना हो, और अगर खुद जुदा हो तो या बेनिकाह रहे या अपने शोहर से फिर मिलाप कर ले, ना शोहर बीवी को छोड़े। और इत्थे पौल जिहड़ा है फिर वही कह रहा है कि जेनेसिस च, पैदाइश की किताब च खुदावन ने कहा सी कि तुसी दोवें एक जान हो जी, एक दूसरे तो जुदा नहीं होना। खुदावन दा हुक्म है, शुरू तो खुदावन ने आख्या है। आंदा अगर जुदा हो तो बेनकाह रहे या अपने शोहर से फिर मिलाप कर ले, ना शोहर बीवी को छोड़े। छड्डन दी कहला इजाजत नहीं कह रहे जी, तुसी दोवें आपस च इकट्ठे रहो। अगे एक बड़ी खास गल है, क्योंकि सारे चैप्टर जिहड़ा शादीशुदा जिंदगी दे बारे च, अक्सर तुहानू हो सकता है अपने सवालों के जवाब इत्थे मिल जाण। मैं पढ़ना फिर अगे जी। बाकियों से मैं ही कहता हूं, ना खुदावन कि अगर किसी बाई की बीवी या बाई मां ना हो, उसके साथ रहने को राजी हो तो वो उसको ना छोड़े। आंदा अगर कोई शादी करता है तो उसकी बीवी जिहड़ी है ईमान च नहीं है, कहते इस वजह तो तुसी उन्होंने नहीं छड़ना। और जिस औरत का शोहर बाईमान ना हो, उसके साथ रहने को राजी हो तो वो शोहर को ना छोड़े। अक्सर से एक आयत पढ़ने हैं कि ना हमवार जुए में ना जुतो। और ना हमवार जुआ है कि एक पार्टनर जिहड़ा है वो खुदावन च है, दूजा नहीं है। और उनका की है, और ना हमवार जुए च एक उधरों जिहड़ा ताकतवर हुंदा वो अपने अल खिच्चदा, ते जिहड़ा कमजोर हुंदा वो अपने अल खिच्चण दी कोशिश करदा। लेकिन कहंदा अगर ईमान च नहीं है तो उन्हें छड्डना नहीं इस वजह तो, क्योंकि जो शोहर, लेकिन बाज़ का इस तरह हुंदा है कि तुसी शादीशुदा जिंदगी चल रही है, लेकिन बीवी जिहड़ी है वो क्रिश्चियन हो गई या बंदा क्रिश्चियन हो गया, हुण दूसरा बंदा जिहड़ा वो ईमान च नहीं है, हुण जरूरी नहीं कि असीं उन्हें छड्ड दईए। वजह की है? क्योंकि जो शोहर बाईमान नहीं वो बीवी के सबब से पाक ठहरता है। अगर शोहर बाईमान नहीं तो बीवी की वजह तो पाक ठहरेगा, और जो बीवी बाईमान नहीं वो मसीही शोहर के बायस पाक ठहरती है। वरना तुम्हारे फर्जंद नापाक होते मगर अब पाक हैं।
ਆਂਦਾ ਵਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਾਪਾਕ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਾਕ ਨੇ। लेकिन मर्द जो बाईमान ना हो अगर वो जुदा हो तो जुदा होने दो। आंदा अगर कोई अपनी खुशी ना जुदा होना चाहता ठीक है जी, जुदा होने दो। ऐसी हालत में कोई भाई या बहन पाबंद नहीं और खुदा ने हमको मेल मिलाप के लिए बुलाया है। क्योंकि ऐ औरत तुझे क्या खबर कि शायद तू अपने शोहर को बचा ले, और ऐ मर्द तुझे क्या खबर कि शायद तू अपनी बीवी को बचा ले। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਸ਼ੋਹਰ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਬੀਵੀ ਅਲੱਗ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਪੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਟਸ ਰਿਡਿਕੂਲਸ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਹਰ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਹੀ ਚਰਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਰਿਜਿਡ ਹੋ ਜਾਣੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਲੱਭਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੋਏ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਉਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ 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 ਮੈਂ। ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਂਝ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਝ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਮਸਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੜ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੜ ਕੀ? ਐਨੀਵੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਂਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈਮਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਈਮਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੀਵੀ ਦੀ ਦੁਆ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਾਈਫ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਤੂੰ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। एनीवे, so that's a never ending problem। मगर जैसा खुदावन ने हर एक को हिस्सा दिया है और जिस तरह खुदा ने हर एक को बुलाया है उसी तरह वो चले। और मैं सब कलीसियाओं में ऐसा ही मुकर्रर करता हूं कि जो मखतून बुलाया गया हो वो नामख्तून ना हो जाए, ना जो नामख्तूनी की हालत में बुलाया गया हो वो मख्तून ना हो जाए। ना खतना कोई चीज है ना मख्तूनी, बल्कि खुदा के हुक्म पर चलना सब कुछ है। हर शख्स जिस हालत में बुलाया गया हो उसी में रहे। अगर तू गुलामी की हालत में बुलाया गया हो तो फिक्र ना कर, क्योंकि अगर तू आजाद हो सके तो इसी को इख्तियार कर। क्योंकि जो शख्स गुलामी की हालत में खुदावंद में बुलाया गया हो वो खुदावंद का आजाद किया हुआ है। इसी तरह जो आजादी की हालत में बुलाया गया है वो मसीह का गुलाम है। तुम कीमत से खरीदे गए हो, आदमियों के गुलाम ना बनो। है भाइयों, जो कोई जिस हालत में बुलाया गया हो वो उसी हालत में खुदा के साथ रहे। बड़ी खास गल पौलुस रसूल कह रहा है कि
खुदावंद दी बुलाहट दे मुताबिक जिंदगी गुजारना। बुलाहट या कॉलिंग या खिदमत हर एक दी एक अगला खिदमत है जी। किसी नूं किसी तरह नहीं। पिछे पौलुस रसूल ने आख्या कि मैनू खुदावन ने बुलाया, मैं शादी नहीं की थी, ठीक है, मेरी ये बुलाहट है जी, मेरी ये खिदमत है। कहता जिस तरह किसी नूं खुदावन ने बुलाया उस तरह रवे। अगर गुलामी की हालत च बुलाया तो उत्थे गुलाम बन के रहे। आंदा मसीह च तुसी आजाद हो, मसीह च तुसी आजाद हो। आंदा अगर आजादी की हालत च बुलाया ठीक है, उस तरह ही रहो तुसी। अगर मखतूनी की हालत च बनाया बुलाया वे, मखतून कहते हैं कि जिन्हों ने सरकमसिजन कराया होंगे, ते आंदे उंज ही रहे, कोई मसला नहीं। अगर ना मखतूनी की हालत च बुलाया तो ना मखतून रवे। हुण ये नहीं कि असीं स्विच करते रहिए, मैं यह करना चाहना तो मैं इंज करांगा, मेरा सरकमसिजन नहीं होया मैं सरकमसिजन करा ला। एक बंदे दा होया है वो अपनी कह लो कि जिस्मानी हालत ते जिहड़ा असीं ज्यादा गौर करना है। कहंदा जिवें किसी नूं बुलाया गया उस तरह ही खिदमत करे, क्योंकि जो शख्स गुलामी की हालत में खुदावंद में बुलाया गया है वो खुदावंद का आजाद किया हुआ है। इसी तरह जो आजादी की हालत में बुलाया गया है वो मसीह का गुलाम है। गल एक ही है जी। आंदा हुण ना खतना कोई चीज है ते ना मखतूनी, बल्कि खुदा के हुक्मों पर चलना ही सब कुछ है। तुम कीमत से खरीदे गए हो, दैट इज द मेन थिंग। यू आर द टेंपल ऑफ होली स्पिरिट। तुसी ओदा मकदस बन चुके हो। तुसी हुण अपने रहे ही नहीं, एक कीमत दे नाल खरीदे गए हो। ते अपने बदना तो खुदावंद दा जलाल जाहिर करो। बदन काम जेड़ा मर्जी हो, डजंट मैटर, काम मैटर नहीं करदा इत्थे। आंदा जिथे भी जेड़ा भी काम तुसी करन दे हो उत्थे खुदावंद दा जलाल जाहिर करो अपने बदना। है भाइयों, जो कोई जिस हालत में बुलाया गया है उसी हालत में खुदा के साथ रहे। आगे फिर होर सवाल ने कुछ कंवारों और बेवाओं के बारे में। कंवारियों के हक में मेरे पास खुदावंद का कोई हुक्म नहीं, लेकिन दयानतदार होने के लिए जैसा खुदावंद की तरफ से मुझ पर रहम हुआ उसके मुवाफिक अपनी राय देता हूं। हुण इत्थे पौलुस रसूल अपनी राय दे रहा। हुण ये नहीं कि सारे हुक्म बन गए ने, वो कि राय देन दिया। बस मौजूदा मुसीबत के ख्याल से मेरी राय में आदमी के लिए यही बेहतर है, जैसा है वैसा ही रहे। कहता मैं तो यही आखांगा जिंज दा बंदा है उस तरह ही रहे। अगर तेरे बीवी है तो उससे जुदा होने की कोशिश ना कर। अगर तेरे बीवी नहीं तो बीवी की तलाश ना कर। लेकिन तू ब्याह करे भी तो गुनाह नहीं, अगर कुंवारी ब्याही जाए तो गुनाह नहीं, मगर ऐसे लोग जिस्मानी तकलीफ पाएंगे और मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। पौल कह रहा है कुंवारियां नू या कुंवारे लोकां नू कि तुसी विआह ना करो, चंगी गल है। अजकल भी अक्सर असीं कहने कोई पता साडा जो विआह हो जाए, कोई कुंवारा बंदा आखने मैं विआह करना, ओ यार छड्ड पर विआह च की रखिया। असीं इंज कहने बड़ा नैगेटिव लैने, लेकिन पौलुस रसूल इनू नैगेटिव नहीं लै रहा, एक बड़ी पॉजिटिव गल कर रहा। कहंदा जिस तरह दा मैं वां तुसीं इस तरह दे बनो। मसला है कि जदों तुसीं कुंवारे हुंदे हो, हाँ जी, बड़ी जोश ते वलवला हुंदा है। आंदा खुदावंद नू इंज दे लोकां दी लोड़ है जी। एक नवां जिहड़ा जोश हुंदा है जिहड़ा यंग लोकां च। लेकिन आंदा अगर थोड़ी शादी हो चुकी है तो बीवी नू छड्डण दी लोड़ नहीं खिदमत वास्ते। और अगर तेरी बीवी नहीं तो बीवी की तलाश ना कर। कहंदा मकसद है, कहंदा मेरे वर्गे बढ़ो। हुण उन्हें पौलुस ने पहला ही कहा छड़ा मैं अपनी राय दे रहा, एक मशवरा दे रहा तुहानू, जरूरी नहीं तुसीं इस तरह करो। लेकिन तू ब्याह करे भी तो गुनाह नहीं,
अगर कुंवारी ब्याही जाए तो गुनाह नहीं, मगर ऐसे लोग जिस्मानी तकलीफ पाएंगे और मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। हुण हुंदा की है विआह करके? तुहानूं पता है कि जदों शादीशुदा जिंदगी शुरू हो जाती है, बच्चे पैदा होंदे ने जी, घर दे मामलात, घर दे बिल, नौकरी करना, ये करना, वो करना, बड़ियां इस लो कह लो कि घर दे ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੁਰਸਤ ਹੁੰਦੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਦੇ ਲੋਕੀ ਤਕਲੀਫ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕਾ। लेकिन इत्थे कहना मैं अपनी राय दे रहा, मशवरा दे रहा, तुहानूं हुक्म नहीं दे रहा। कहना मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, कहना मैं तुहानूं बचाना चाहना कि जिवें मैं वा मेरे वर्गे बनो। मैनू खुदावंद ने बचा लिया, मैं सिर्फ खुदावंद वास्ते काम करना। थोड़ा अगे जाने, मगर है भाइयों मैं ये कहता हूं कि वक्त तंग है, बस आगे को चाहिए कि बीवी वाले ऐसे हों कि गोया उनके पास बीवियां नहीं, और रोने वाले ऐसे हों कि गोया नहीं रोते, खुशी करने वाले ऐसे हों कि गोया खुशी नहीं करते, और खरीदने वाले ऐसे हों कि गोया माल नहीं रखते, दीनवी कारोबार करने वाले ऐसे हों कि दुनिया ही के ना हो जाएं, क्योंकि दुनिया की शक्ल बदलती जाती है। अगे उन्हें कुछ मिसालां दित्तियां ने कि किहड़ियां फिक्रां होणगियां, किस फिक्र तो सानू बचाना चाहता। अंदर वक्त तंग है, बड़ा तंग है जी वक्त। बस आगे को चाहिए कि बीवी वाले ऐसे हों कि गोया उनके पास बीवियां नहीं। अंदर वक्त बड़ा तंग है, तो वक्त बड़ा टाइम बहुत घट है साडे को। अंदर एक मसला होएगा कि तुसी खुदावंद दी खिदमत करना चाहोगे, टाइम नहीं लगेगा। लेकिन यह भी कहता है कि बीवी वाले ऐसे हों कि गोया उनके पास बीवियां नहीं, और रोने वाले ऐसे हों कि गोया नहीं रोते, खुशी करने वाले ऐसे हों कि गोया खुशी नहीं करते। एक मिसाल दे रहा है कि शादीशुदा जिंदगी है कि अंदर एक ही तरह तुसी खिदमत कर सकते हो अगर तुसी भुल जाओ कि थोड़ी बीवी है। और दीनवी कारोबार वाले ऐसे हों कि दुनिया ही के ना हो जाएं, और दुनिया की शक्ल बदलती जाती है। ये सारियां चीज़ां सानू पिछे खिंचदियां ने, लेकिन ये साडी जिंदगी का हिस्सा ने। इन्हां नू भी नाल लैके चलना, बैलेंस करके चलना। हुण सानू पता है कि साडी सारियां चीज़ां जिंदगी का हिस्सा है, असीं इन्हां नू कढ नहीं सकदे जिंदगी ते फिर की करना चाहिए? कहंदा उस जिंदगी दे विच खुदावंद नू लैके आओ। तुहानू पता है तुसी जिंदगी तो अलग हो ही नहीं सकते। कि हुण चलो मैं तुहानू एक मिसाल देना, मेरी ड्यूटी इस तरह की, गड्डी बड़ी चलानी पैंदी, तो मैं गड्डी दे विच एक बाइबल रखी है। अक्सर वाला की हुंदा है, जो ट्रैफिक बड़ी फस जाती, घंटा घंटा ट्रैफिक रोकी रहिंदी है, मैं बाइबल कढ के पढ़ना शुरू कर देना। जिथे मैनूं टाइम लगता है मैं पढ़ लेना। अक्सर ड्यूटी ते भी टाइम लगे तो पढ़ ली दी। हुण मैनूं पता है वो ड्यूटी ते जाके मेरे को नहीं पढ़ी जानी, या कह लो कि मेरी ऐसी ड्यूटी है मेरे को नहीं होया काम, तो जिथे टाइम लगता उत्थे बाइबल पढ़ ली दी। हुण आंदा अगर तुहाडी जिहड़ी शादीशुदा जिंदगी चल रही, उत्थे जिहड़े तुसी गल्लां मारदे हो, लड़ाइयां करदे हो, आंदा आहिस्ता आहिस्ता खुदावंद नूं अपनी जिंदगी च लैके आओ। थोड़ा गल करन दा तरीका बदल जाएगा, थोड़े टॉपिक बदल जाएंगे। तुसी डिस्कस करो बाइबल दीयां गल्लां, बच्चों के सामने डिस्कस करो, बच्चे भी सीखणगे जी गल्लां, कि थोड़ा जिहड़ा रहन दा तरीका बदल जाए, खुदावंद दे विच रहो। बेसिकली हकीकतन गल इहो ही है कि प्रैक्टिकली साडी जिंदगी जो चीज़ां नजर आण।
क्योंकि दुनिया की शक्ल बदलती जा रही है जी। दीनवी कारोबार वाले ऐसे हों कि दुनिया ही के ना हो जाएं। आंदा अगर तुसी कारोबार भी करते हो तेरा मतलब ये नहीं कि तुसी दुनिया दे ही हो जाओ। बस दुनिया दे विच रह के दुनिया दे हम शक्ल नहीं बनना सी, अपनी शक्ल बदलते जाओ तुसी। आंदा दुनिया ने पता लगना चाहिए बंदा क्रिश्चियन है। मैं बड़ी बार एक मिसाल दी है, मैं अपनी मिसाल देना ना कि असी 5 कोलीग हैं जी, जिथे असी ड्यूटी करने ऑफिस च, हर टेबल ते एक कंप्यूटर पे 5 लोग ही असी, 2 लड़कियां 3 मुंडे ने, सॉरी 2 मुंडे 3 कुड़ियां। हुण उत्थे हुंदा की है कि असी जेडे 2 लड़के है ना, असी बड़े कूल माइंड आ जी, गुस्सा नहीं करना असी किसी चीज का, बड़े आराम नाल काम करना। वो जी लड़कियां ने बड़ी परेशान रहती हर वे, टेंशन बड़ी, असी चुप करके बैठे रहने। उन्होंने इस गल का गुस्सा चढ़ता चुप करके क्यों बैठे ने, इन्हों क्यों टेंशन नहीं होंगी इन्हों टेंशन क्यों नहीं होंगी। मैनू अक्सर पूछते हैं कि ऐसी केड़ी वजह है, ऐसी केड़ी चीज है तेरे को कि तेनू कभी टेंशन नहीं हुई, तेनू गुस्सा भी नहीं आता जल्दी। मैं एक दिन उन्होंने दसिया भी मैं कि आई हैव जीसस इन माई लाइफ, आई हैव पीस इन मी। मैं क्या खुदा में यीशु मसीह चाह जाओ, तुसी भी पीस चाह जाओ। एक दिन मैं एक ना गल करनी शुरू की थी, कहती डोंट इवन ट्राई। मैं कहा अच्छा जी। कहते मेरे नाल गल करने की कोशिश भी ना करी। मैं कहा ठीक है जी, नहीं कर दे। मैं कहा तू मैंने पूछा मैं तेन दस छड़िया। मीन थोड़ी कारोबारी जिंदगी च वो चीज़ां नजर आनी चाहिए लोगों को। जो चीज़ां नजर आंदियां ने थोड़ी जिंदगी चो गवाही बन जाती, फिर तुसी लोगों को दस दो गवाही। मैनू ना पूछा सी, मैं दस छड़िया सी, वो नहीं सुनना चाहते। मैं कि थोड़ी मर्जी है जी। मैं कि मैं फोर्स नहीं कर रहा, अगर तुसी गल करना चाहो आई कैन टॉक टू यू अबाउट जीसस। उस तो बाद हूँ कह लो कि मेरा उत्थे करैक्टर बन गया। उत्थे अगर कोई भी काम होए ना ऑफिस च, कोई भी नहीं करन जाएगा, मैं करन चला जाना। तो अक्सर मैनू कहते ने वो फोन आया सी, असी सारे मना कर दिता सी, तो मैनू कहते ने तू तो जाना ही सी लाजमी अगर तेनों कोई फोन करदा। मैं कहा कोई मसला नहीं मैं काम कर दांगा अगर मैं फारग हाँ। उन्हें बड़ा गुस्सा चढ़ता खैर, समथिंग यू हैव टू बिल्ड योर करैक्टर। थोड़ी जिंदगी च वो करैक्टर नजर आना चाहिए, तो फिर लोगों को पता लगे, उस तो थोड़ी गवाही बनती, तुसी लोगों को दस सकते। कारोबार च भी कहता है इन्हें मगर ना हो जाओ कि तुसी कारोबार दे बस बन के रह जाओ। हुण कहता वक्त ऐसा तंग आ रहा है कि ये समझो कि थोड़ी बीवी है ही नहीं, थोड़े बच्चे है ही नहीं, लेकिन इस तरह तुसी कर नहीं सकते। कहता मैं एक राय दे रहा, कहता वक्त इस तरह का आ गया कि तुसी फुल टाइम मुनादी करो, लेकिन मैंने पता तुसी नहीं कर सकते। बस मैं ये चाहता हूं कि तुम बेफिक्र रहो। बेब्याह शख्स खुदा की फिक्र में रहता है कि किस तरह खुदा को राजी करे, मगर ब्याह हुआ शख्स दुनिया की फिक्र में रहता है कि किस तरह अपनी बीवी को राजी करे पौलुस रसूल बड़ी चंगी तरह पता कहता है बंदे का ब्याह हो जाए, हर वेले बुढ़ी नूं राजी करन दे चक्कर च रहिंदा, लेकिन जेड़ा बंदा ब्याह नहीं होया बेफिक्र हुंदा है। सो मैं ये चाहता हूं कि तुम बेफिक्र रहो। बेब्याह शख्स खुदावंद की फिक्र में रहता है। इत्थे पौलुस रसूल अपनी मिसाल दे रहे उन्होंने कि मैनू कोई फिक्र नहीं, इसलिए कहते मैं भी तुहानू इहो ही राय दांगा कि तुसी इस तरह ही रहो। लेकिन उन्हें पहले ही कह छड़िया अगर तुहाडे कोल जब्त नहीं हुंदा तुसी ब्याह कर लो। मगर ब्याह शख्स दुनिया की फिक्र में रहता है कि किस तरह अपनी बीवी को राजी करे। दैट्स ट्रू। ब्याही और बेब्याही में भी फर्क है।
बेब्याही खुदावंद की फिक्र में रहती है ताकि उसका जिस्म और रूह दोनों पाक हों, मगर ब्याही हुई औरत दुनिया की फिक्र में रहती है किस तरह अपने शोहर को राजी करे। वेरी सिंपल, तुसी समझ दो गल्लां नूं। ये तुम्हारे फायदे के लिए कहता हूं, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए। कहंदा मैं थोड़े फायदे दियां गल्लां कर रहा, मैं नहीं कह रहा कि तुसी फंस जाओ किसी चीज च, बल्कि इसलिए कि जो ज़ेबा है वही अमल में आए और तुम खुदावंद की खिदमत में बेवसवसा मशगूल रहो। दैट इज द पॉइंट। कहंदा मैं चाहना कि तुसी दुनिया दियां टेंशनां चों दूर हो के खुदावंद दी खिदमत करो, बेवसवसा ਉਹਦੇ ਚ मसरूफ हो, खिदमत च। और अगर कोई ये समझे कि मैं अपनी कंवारी लड़की की हक तलफी करता हूं जिसकी जवानी ढली चली है और जरूरत भी मालूम हो तो इख्तियार है, इसमें गुनाह नहीं, वो उसका ब्याह होने दे। मगर जो अपने दिल में पुख्ता हो और इसकी कुछ जरूरत ना हो बल्कि अपने इरादा के अंजाम देने पर कादिर हो और दिल में कसद कर लिया कि मैं अपनी लड़की को बेनकाब रखूंगा, वो अच्छा करता है। बस जो अपनी कुंवारी लड़की को ब्याह देता है वो अच्छा करता है, जो नहीं चाहता वो भी अच्छा करता है। कहंदे डिपेंड करदा है, तुसी लड़की नूं कुंवारा बुढ़ापा छड़िया, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰ ਛੜਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਜ਼ਾਇਕਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ नहीं है। जब तक औरत का शौहर जीता है वो उसकी पाबंद है और जब उसका शौहर मर जाए तो जिससे चाहे ब्याह कर सकती है, मगर सिर्फ खुदावंद में। प्रेज द लॉर्ड। एक गल याद रखो, अक्सर असी कहने हाँ जी तलाक हो गई है या मेरी कॉल आ गई से। अच्छा, अक्सर ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਾਈਫ ਮਰ ਗਈ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, लेकिन एंड ते छोटी जी गल बोलने आखिए खुदावंद में। जब तक औरत का शोहर जीता है वो उसकी पाबंद है। मीन तुसी दूसरे ब्याह दा सोच भी नहीं सकते। और जब उसका शोहर मर जाए तो जिससे चाहे वो ब्याह कर सकती है, मगर सिर्फ खुदावंद में, मगर सिर्फ खुदावंद में, खुदावंद नूं हाजिर नाज़र जान के। लेकिन जैसी है अगर वैसी ही रहे तो मेरी राय में ज्यादा खुश नसीब है। और मैं समझता हूं कि खुदावंद का रूह मुझ में भी है। प्रेज द लॉर्ड। एंड ते जिहड़ी गल कीती पौल आंदा कि अगर विआह नहीं करदी कोई लड़की ते इट्स गुड, खुदावंद दी खिदमत कर सकदी हो, किसी चीज की फिक्र नहीं। कहंदा मैं अपनी राय दे रहा हूं क्योंकि मैं समझना कि खुदावंद दा रूह मेरे च ते मैं तुहानूं स्पिरिचुअली ये गल्लां समझाण दे, रूहानी तौर ते। ये सारे क्वेश्चन सी जिहड़े कि अज साडे भी यही ने सवाल, लेकिन बड़ी खुश सलूबी दे नाल पौलुस रसूल ने जवाब दिता है कि खुदावंद दी खिदमत बड़ी इंपोर्टेंट है जी, हर रिश्ते तो इंपोर्टेंट है, बड़ी अहमियत रखती है। लेकिन अगर तुसी रिश्तियां च आ गए हो तो उस रिश्ते विच खुदावंद दी खिदमत नजर आनी चाहिए। लेकिन हुंदा की है कि शैतान दा ऐसा गलबा हुंदा है कि असीं लड़ाइयां झगड़ियां च पै के। मैं हुण एक बंदे की गल नहीं कर रहा, हर घर दी कहानी है जी। मैं क्या से ना शैतान ने शुरू तो ही यह काम किया है कि जेड़ा अहद खुदावन ने बना छड़िया, हर उस अहद नूं तोड़न की कोशिश कर रहा है ते वो कामयाब भी है। सब तो पहला उन्हें हवा नूं फड़िया सी, हवा कली सी, इसलिए पौल कहंदा तुसीं वखरे ना रहो। कली हवा नूं शैतान ने वरगलाया सी।
ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੁਦਾ ਨਾ ਰਹੋ, ਸਿਰਫ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਨੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਗਲਬਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੇ ਵਸਵਸੇ ਪਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਬਗੈਰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਲਿਵਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਦੇ ਛੜਿਆ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਿਆਹ, ਤੇ ਔਰਤ ਨਾ ਕਰਨ ਡਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣ ਡਿਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਣ ਡਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਦ, ਤੇ ਇਸ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। क्योंकि बाइबल च लिखा है जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको जुदा नहीं करना, लेकिन शैतान इनू उल्टा काम करदा, कहंदा मैं ते करना ही करना। ते अगर कोई तोड़न दी गल करदा रिश्ते नू ते वो शैतान है जी। ये चीज़ां उदों ही सानूं समझ आउणगीआं जदों असीं खुदावंद च होवांगे, खुदावंद दी खिदमत च। खिदमत ये नहीं कि तुसीं बाहर जाके करो, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਵਾਈਫ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਈਮਾਨ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਮਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਾਈਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤੇ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਕੋ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਬਦਰੂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਚੋਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਬਦਰੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਦਰੂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ? ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਜਦਾ ਚ ਗਈ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਦਰੂਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੈ ਵੇ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਟਸ ਗੈਰੰਟੀਡ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਰੂਹ ਪਾਇਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹ 'ਚ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਟੱਚ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਖਾਕ ਹੈ, ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਖਾਕ ਨੂੰ ਚੱਟੇਗਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਖਾਕ में। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਖਾਕੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਹੁਣ ਰੂਹਾਨੀ ਬਣਾ ਛੜਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖਾਕੀ ਰਵਾਂਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੱਟਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। रूह है कि खुदावंद दा रूह, इट्स जस्ट लाइक अ विंड, हवा। हवा ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰੂਹ 'ਚ ਚੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ 'ਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਈਫ ਰੂਹਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ,
ਜੇ ਬੰਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਵਾਈਫ ਜਸਮਾਨੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰੂਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे जिस कलाम के वसीले से। प्रेज द लॉर्ड। जी आमीन। गॉड ब्लेस यू भाई जावेद, खुदावंद आपको बरकत दे आज के खूबसूरत कलाम के लिए जो आज खुदा ने हमसे कलाम किया है। मैं समझता हूँ कि हम में से हर एक और इस दुनिया में मौजूद हर एक इंसान की ज़रूरत है। हमें इन बातों को अच्छे तौर पर समझना और जानना ज़रूरी है कि हमारी जो ख़ानदानी ज़िंदगी है वो कैसी है, और अगर कोई शादीशुदा नहीं है तो उसकी मसीही रफ़ाक़त शराकत में कैसी ज़िंदगी है। मैं समझता हूँ कि आज का कलाम जो है उसने हम पर इन बातों को ज़ाहिर किया है। हम इस खूबसूरत कलाम के लिए खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं। तो हमारे दरमियान भाई विलियम है, मेरी उनसे गुजारिश है कि आज की सारी इबादत के लिए, ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए और हमारे साथ जुड़े हुए उन तमाम बहनों और भाइयों के लिए जिन्होंने आज खुदा की आवाज़ सुनी है, शुक्रगुजारी की दुआ करें। जी भाई विलियम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती है मेरे अजीज़ों। तो आए हम खुदा के हुजूर में झुकें और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, क्योंकि वही हमारा खुदावंद है जो हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। कदूस 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 मेहरबान जिंदा आसमानी बाप यहोवा पाक खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए ए खुदावंद जो तूने हमें दिया, और तूने अपने बेटे हमारे निजात दहिंदा यस्सु नासरी के नाम से हमें ब्लेस किया और हमें गैर कौमों से ए खुदावंद चुनकर तूने अपनी हजूरी में हमें बैठने का फ़ज़ल दिया। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। तेरे कलाम में लिखा हुआ है, मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ऐ खुदावंद, हम तुझसे मांगते हैं तेरा फ़ज़ल, तेरी रहमत, तेरा कलाम। खुदावंद तू अपना फ़ज़ल हम पर कर। और ऐ खुदावंद, जितने बहन भाइयों ने ऐ खुदावंद इस कलाम को सुना है, ऐ खुदावंद तू इस कलाम के एवज़ उनको बड़ी बरकत देना, और तेरे सूरमा को ऐ खुदावंद जिसने बड़ी वफ़ादारी के साथ ऐ खुदावंद तेरे कलाम को तेरे लोगों तक शेयर किया है, उसने पाक रूह की हदायत से ऐ खुदावंद जिस तरह तूने इसको गाइड किया, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं उसकी फ़ैमिली के लिए, उसके बच्चों के लिए ऐ खुदावंद, और उसकी नौकरी के लिए तेरा बढ़ा हुआ हाथ मांग देते हैं। ऐ खुदावंद, इब्लीस की तमाम गंदी नापाक तस्वीरों को ऐ खुदावंद जो तेरे लोगों के ख़िलाफ़ बांधता है, उसको पाक रूह की आग से तू भस्म कर, और अपने पाक लोगों को ऐ खुदावंद अपने कवी और दाहिने हाथ के नीचे रखा है। खुदावंद तेरा फ़ज़ल, तेरी रहमत, तेरी शफ़क़त हमेशा हमारे ऊपर रहे। और जितने लोग हैं खुदावंद नीचे बैठ के कलाम सुन रहे हैं, इनकी ज़िंदगियों के लिए भी ऐ खुदावंद तेरे हुजूर में आता हूँ। ऐ खुदावंद ये कलाम को अपने दिलों में लेकर जाएं, और जहाँ भी ऐ खुदावंद ये जाएं तेरे कलाम को शेयर करें ऐ खुदावंद। तो इनकी ज़बानों को खोल ऐ खुदा, क्योंकि इब्लीस ने लोगों की ज़बानों पे ताले लगाए हुए हैं। खुदावंद उन बंधनों को तू तोड़ है खुदा, उन पिंजरों को तोड़ है खुदा। तेरे लोग तेरे कलाम से आज़ाद किए जाते हैं। खुदावंद तू दुनिया में आया ही इसलिए यीशु नासरी के जो बोझ के दबे हुए लोग हैं उनको छुड़ा सके, जो इब्लीस के हाथों पिस रहे हैं उनको छुड़ा सके। खुदावंद तू किसी की हलाकत नहीं चाहता,
खुदावंद हमारे अंदर ने ईमान रखा है और है खुदा अपने कलाम के लिए हमें इस्तेमाल करता है खुदावंद, इस ईमान में तो हमें और ज़्यादा बढ़ाए खुदावंद। भाई सलातीन के लिए जो है खुदावंद बड़ी वफादारी के साथ हर रोज़ है खुदा तेरे कलाम की मनादी के लिए इस प्लेटफार्म को खोलता है खुदावंद। ये तूने फजल दिया है खुदावंद कि हम तेरे हजूर में बैठ सकें और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। इस सोशल मीडिया के ज़रिया से खुदावंद बहुत सारे कानों तक ये तेरा कलाम जाता है, क्योंकि तूने हमें मनाद बनाया है ताकि हम तेरी खुशखबरी दे सकें। तमाम बहनों भाइयों को छू और ब्लेस कर, और हमें वो कान दे खुदावंद कि हम शागिर्दों की तरह इस कलाम को सुने और इस कलाम को लोगों तक लेके जाएं। खुदा तेरे कलाम की पूरी दुनिया में मनादी हो है खुदा, और तेरी कौम बनी इसराइल के लिए खुदावंद जो तेरे ईमानदार लोग उसमें रहते हैं उनके लिए खुदा तेरी बरकत चाहता हूँ। इब्लीस के तमाम मंसूबों को फेल कर दे खुदा जो तेरे लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है खुदा, और खुदा तो उनको अक्ल और दनाई और हिकमत दे के वो तुझे जल्द कबूल करें और हमेशा की उस बादशाही के वारिस बन सकें जो तू उनको देने के लिए है खुदा। हमारी रहनुमाई कर इस कलाम के वसीला से, छू और ब्लेस कर इनके बिजनेस के ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर है खुदावंद। इब्लीस इनको छूने ना पाए है खुदा, इनके घरानों के ऊपर, इनके रुपए पैसे के ऊपर है खुदावंद। तेरी बरकत मांग लेता हूँ, ये जहाँ भी जाएं अपन तेरा किरदार, बाइबल का किरदार है खुदा लेकर जाएं खुदा। जैसे तेरे बंदा ने अभी बताया है कि हम उस रिश्ते में वफादार रहें, और जो तूने हमें अपने कलाम में अपने बंदा पलूस रसूल के वसीला से हम तक कलाम पहुँचाया, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। छू और ब्लेस